हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे रायन टेरी और अली बिलाल की, और साथ में एरिन बैंक्स को भी इसी अपडेट के अंदर कवर करेंगे क्योंकि टाइलर मेनियन ने रिव्यू कर दिया है मेंस फिजिक डिवीजन को भी। यस गाइस, मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक डिवीजन के रिजल्ट्स कैसे रहे, किस एथलीट को कहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और कौन एथलीट कितना ज्यादा शाइन कर रहा था, इस पूरे बारे में टाइलर मेनियन ने अपने रिव्यू वीडियो में आकर हमें बताया। और सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि टाइलर मेनियन ने ये बोला कि इट वाज अ रियली गुड मैचअप बिटवीन अली बिलाल एंड रायन टेरी, क्योंकि दोनों ही ऐसी फिजिक कैरी कर रहे थे जो हमारी मेंस फिजिक डिवीजन की डेफिनेशन पर, क्राइटेरिया पर पूरी तरीके से फिट बैठती हैं, डिफाइन करती हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पर रायन टेरी की फिजिक को रिव्यू करते हुए टाइलर मेनियन ने ये बोला, He did a great job of coming back. Obviously, he's always in great condition. Ryan's strength is his overall balance. And obviously, he has a great taper with a great midsection. And then when you go to the back, he has an amazing back that improves so much. So from the front, we see the balance with the shoulders and the arms. The chest is full, but obviously doesn't look like a bodybuilder's. He has a great V-taper, all coming into a nice midsection with very developed and conditioned abs. And then again, you go to the lower body, he has great lower body development, so he looks very balanced standing there. From the back, he's improved his back. Obviously, it was amazing last year. I think it was just as good, if not a little bit better this year. Now, conditioning-wise, Ryan was very conditioned, but for me, he was just, in the morning, a touch on the flat side. I think, even though that was the case, all of his strengths really were shown here, and it was enough for him to take the title because... तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये रायन टेरी की फिजिक बहुत ज़्यादा बैलेंस कैरी करती है, फ्रंट टू बैक कोई भी मसल एक दूसरे को और पावर नहीं करता, डिसप्रपोर्शनेट टाइप कुछ भी कहीं से भी इनकी फिजिक नहीं लगती। उसी की इन्होंने बात करी, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा बैलेंस थी, कंडीशन बहुत ही सुपीरियर लेवल की लाए थे और वो हमेशा ही लेकर आते हैं। एक ग्रेट टेपर होल्ड कर रहे थे, वी टेपर इनका बहुत ज़बरदस्त, और साथ में बैक गाइस, बैक भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है इनकी, जो इन्होंने ओवर द ईयर्स करी है। साथ में यहाँ पर टाइलर ने ये भी बताया कि मॉर्निंग शो में यानी प्री जजिंग में थोड़े से फ्लैट साइड पे ज़रूर थे, जो कि फाइनल्स में आके इन्होंने फिक्स कर लिया था, बट उसके बाद भी गाइस फ्लैट साइड पे होने के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांगली शो कर रहे थे। इनकी कोर वगैरह बहुत डायलिन थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा हट के बन रही थी, और इसीलिए गाइस यहाँ पर फर्स्ट पर प्लेस हुए। बाकी सबसे ज़्यादा जो हम लोग जानना चाहते थे अली बिलाल की फिजिक के बारे में कि भाई टाइलर मेनियन की जजेस की क्या ओपिनियन थी। To his chest, he can still use just a touch more to that upper chest, but the thickness improved. And his front pose is very strong because he probably has the best core in men's physique right now. The abs are very 3D, the obliques are very conditioned. Everything is very, very separated in his abdominal section. He also worked on bringing up his legs more. I think he showed good balance between the upper and the lower body standing here in this front pose. The main thing for me, for Ali in the front pose, in the morning specifically, was he was crunched down too far on the abs and he wasn't making sure that he was opening his lats all the way here. If you go and see a video or look at the pictures of Ali from the finals, you will see how much better his front pose looked when he was posing it correctly. And this could have made the show much closer, in my opinion. Now, when we look at Ali from the back, again, I think he had a little bit of posing difficulty. I actually, obviously talked to him after the show to give him his feedback. He said, the nerves kind of took over with his first time, being in the center at the Olympia, which I can't blame him for. You can see from the back that he can still use just a little bit more width here. Look at him specifically next to Ryan. Also, when he was standing next to Aaron, you can see he needs a little bit more of that width for that taper in the back. And in the morning, I feel like his density and thickness and depth was a little bit on the flat side as well. It wasn't really shining through the way it needed to. So when you compared him next to Ryan, I think Ryan really beat him handily from the back. तो यहाँ पर टाइलर मेनियन ने क्लियरली बोला गाइस कि अली बिलाल ने इंप्रूवमेंट्स करी हैं पिट्सबर्ग प्रो की शोइंग से, यानी कि पहले आए थे न्यूयॉर्क प्रो में, उसके बाद अच्छा पैकेज लाई है और ज्यादा पिट्सबर्ग प्रो में, वहां से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स इनकी दिखाई दी यहाँ पर जजेस को। इनके चेस्ट में थिकनेस और ज्यादा इंप्रूव है, लेकिन हाँ उसके बाद और भी ज्यादा इनको अपने अपर चेस्ट पर वर्क करना है। फ्रंट पोजिशन इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस बारे में देखो हमको कोई डिनाइल वाली बात है ही नहीं, हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि इनके फ्रंट पोजिस कितने ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर टाइलर ने भी ये भी बोला कि हर एक चीज, यानी एब्स बोल लो, ऑब्लिक्स बोल लो, साइटस मसल बोल लो, हर एक चीज बहुत ही अच्छी सेपरेटेड थी, और अपने लेग्स को भी इन्होंने काफी ज्यादा ब्रॉटअप करा है ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो सके अपर टू लोअर बॉडी का। देखो प्री जजिंग में टाइलर मेनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक कमी रहती थी, थोड़े से माइनर से फ्लैट साइड पे थे जैसे कि रायन टेरी। तो साथ में दूसरी चीज ये कि भाई इनके लैट्स ये इस तरह से ओपन नहीं कर पाए थे, पोजिंग के अंदर थोड़ा सा ये लैग करते हुए दिखाई दिए, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई दिए, प्री जजिंग में इनके लैट्स ये इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए। एंड इन फाइनल्स इन्होंने ये चीज सॉर्ट करी, क्योंकि फाइनल्स की इनकी आप पोजिंग देखोगे तो मच इंप्रूव थी प्री जजिंग से। और यही टाइलर मेनियन ने यहाँ पर बोला गाइस कि अगर प्री जजिंग में भी है फाइनल्स के हिसाब से ही होते
और इसी तरह से पोस्ट कर तो मुकाबला और ज़्यादा क्लोजर हो जाता। बाकी अली बिलाल को इन्होंने जब लास्ट में फीडबैक दिया तो अली बिलाल ने इसी बारे में ये बताया कि भाई पहली बार में इतने सेंटर ऑफ द स्टेज में था और इस हिसाब से मिस्टर ओलंपिया में मेरे नर्व्स थोड़े से काम कर रहे थे और इसीलिए थोड़ी सी मेरी पोजिंग प्री जजिंग के टाइम पे थोड़ी सी लैक करती हुई दिखाई दी, और जो कि पूरी तरह से गाइस अंडरस्टैंडेबल है। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब इस तरीके से आप इतने बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेज में हो, आपको इतनी लाइमलाइट मिल रही है, आप इस तरह से पूरी तरह से एक कंटेंडर बन गए हो मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतने के मेंस फिजिक डिवीजन से, तो पूरी तरीके से पॉसिबल है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। बाकी कितनी जल्दी ये देखो उन्होंने फाइनल्स में इस चीज़ को कवर अप करा। लेकिन गाइस साथ में जजिस ने ये भी बोला कि अपनी बैक पर इनको विथ डेफिनेटली ऐड करनी होगी, क्योंकि स्पेशली गाइस स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एरिन बैंक्स और रायन टेरी, इनकी बैक थोड़ी सी विथ के मामले में, साइज के मामले में लैक करती हुई दिखाई दे रही थी। प्री जजिंग में थोड़े से फ्लैटर साइड पे जो हमने बोला, लेकिन जजेस ने एट द सेम टाइम गाइस ये बोला कि भाई जैसे ये फाइनल्स में थे ना फ्रंट से, अगर वैसे ही प्री जजिंग के टाइम पे भी होते उसी तरह से अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं, अपनी फिजिक को प्रेजेंट करते हैं, पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो शायद फ्रंट पोस्ट से क्लियरली मुकाबला कुछ और ही होता और साथ में ये बीट कर देते रायन टेरी को। बैक से देखो मुकाबला रायन टेरी बीट कर रहे थे इनको, और हाँ साथ में ये बताया कि बहुत जल्दी इंप्रूव करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है। और साथ में इन्होंने ये भी बिलीव करा है यहाँ पर कि ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि अगले साल ये दोनों एथलीट्स क्या लेकर आते हैं। मतलब एक तरह से टाइलर मेनियन ने ये चीज़ बता दी कि भाई अली बिलाल अब इसी कॉन्वर्जेशन में होने वाले हैं, बिकॉज जिस तरह का उन्होंने पैकेज दिया ना, जजिस की ओपिनियन भी वैसी ही बन गई, उसी हिसाब से जजिस इनको देख रहे हैं। और सच में गाइस मैं भी टोटली बिलीव करता हूँ, जिस स्पीड से इन्होंने इंप्रूवमेंट्स दिखाई है ना, मुझे एक्चुअल में बिलीव है कि बहुत जल्दी अली बिलाल अपनी बैक को भी और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। बिकॉज देखो जजिस ने यहाँ पर, टाइलर मेनियन ने यहाँ पर क्लियरली ये बोल दिया कि अपनी बैक को इन्होंने इंप्रूव डेफिनेटली करा है। इनके लेग्स को भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस चीज़ को भी क्लियरली यहाँ पर टाइलर मेनियन ने क्लियर कर दिया सब लोगों को कि भाई लेग्स भी इंप्रूव थे, बैलेंस काफ़ी अच्छा बन रहा था, बस बैक में थोड़ी विथ की ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू बी राइट देयर। तो लेट्स सी गाइस नेक्स्ट ईयर कैसा जाता है। इनकी कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी भी नेक्स्ट ईयर हमें और ज़्यादा इंप्रूव दिखेगी। बाकी एरिन बैंक्स के बारे में इन्होंने बात करी, और एरिन बैंक्स के बारे में इन्होंने यही बोला कि भाई ही वॉज ऑन अ फ्लैटर साइड। यस, I feel like Aaron was very flat. He was very flat through the front. His chest, actually, for me, his chest looked flat. The amount of detail and separation in his midsection was flat. The abs weren't really popping, especially when, you compare him to the rest of the top six. Obviously, his back is very, very strong, even with him still being a little bit on the flat side. That is basically better than everybody else's up there other than Ryan's. So for me, I think the back kind of carried him forward a little bit. Now, उनका चेस्ट आफ्टर द इम्प्रूवमेंट्स भी इतना ज़्यादा फ्लैटर साइड पे लग रहा था जजिस को कि भाई उनको मज़ा नहीं आया। साथ में इनके एब्स भी काफ़ी फ्लैटर साइड पे लग रहे थे, और साथ में इनका मिड सेक्शन जो था गाइस बहुत अच्छी सेपरेशन वैसे शो नहीं कर रहा था। वो टाइटनेस, वो हार्डनेस जो हम एरिन मैक्स की फिजिक से देखते थे वो प्रेजेंट नहीं हो रही थी। और इवन दो गाइस एरिन मैक्स इतनी ज़्यादा टाइटर साइड पे नहीं थे, उसके बाद भी उनकी बैक इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, इतनी ज़्यादा सुपीरियर है, इतनी ज़्यादा डेडली है कि उसके बाद भी वो थर्ड पर प्लेस हो गए। तो इमेजिन करो कि एरिन मैक्स अगर थोड़ा सा और हार्डर साइड पे होते तो कॉम्पिटिशन का रुख पूरी तरीके से चेंज हो गया होता। जजिस ने, टाइलर मेनियन ने यही चीज़ बोली गई कि बैक इतनी सुपीरियर है कि फ्लैट होने के बाद भी ही वाज लुकिंग सो डैम वेल। तो अब इस हिसाब से गाइस मुझे लगता है कि एरिन मैक्स के चांसेस आने वाले टाइम्स में बनते तो हैं, लेकिन पूरे साल की इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी उनकी वो देखो हमें दुबई प्रो में भी काफ़ी फ्लैट साइड पे दिखाई दिए, यहाँ पर भी फ्लैट साइड पे दिखाई दिए। तो इस हिसाब से आई डोंट नो आगे जाके वो किस तरह से इस चीज़ को इंप्रूव करते हैं। मे बी कोच चेंज करना पड़े, हो सकता है, आई थिंक ये चीज़ इनके लिए वर्क करेगी। बट एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो वो है सैमसन डॉडा की, एंड सैमसन ऐसा लग रहा है गाइस कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यस, ही इज बैक इनटू द जिम, ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है, ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया फॉर द आर्नोल्ड क्लासिक। और कोई भी एक्चुअल बिग थ्रेट ना होने की वजह से गाइस लाइक हार्डी और डायरेक्ट, इन दोनों में से कोई भी कंपीट नहीं करने वाला मेरे हिसाब से, बिकॉज हार्डी ने तो अनाउंस कर दिया और डायरेक्ट का भी अभी कुछ नहीं पता। तो सैमसन के पास एक $500,000 चेक को कलेक्ट करने का बहुत ही ईजी मौका है। आई मीन क्योंकि हम जानते हैं गाइस हार्डी को चाहिए थोड़ा रेस्ट, काफ़ी लंबे टाइम से वो प्रेप वगैरह कर रहे हैं। डायरेक्ट भाई उनको तो अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं इस वक्त, आई डोंट नो किस जोन में जा चुके हैं। इस लॉस ने उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डर हिट कराएगा गाइस, जितना किसी ने भी सोचा होगा। ही डिडंट एक्सपेक्ट दैट, मतलब सेकंड प्लेस चलो फिर भी मान सकते हैं, बट थर्ड प्लेस उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, इसीलिए वो इस वक्त काफ़ी डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं। इनको सिर्फ लगा ये अपनी बैक को दिखाएंगे एंड इट वुड बी लाइट्स आउट। बट गाइस चीज़ें ऐसी नहीं जाती जैसी प्लान करी जाती हैं, और ऐसा ही डायरेक्ट के साथ कुछ हुआ। एंड डायरेक्ट की तरह ही गाइस, डायरेक्ट लैंसफोर्ड की तरह ही सैमसन डॉडा भी हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं हर एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि मार्केटिंग, प्रमोटिंग द स्पोर्ट, बीइंग अ ग्रेट एंड परफेक्ट एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट। गाइस सैमसन भी इन्हीं चीज़ों पर पूरी तरीके से डायरेक्ट की तरह खड़े उतरते हैं।
एंड सैमसन अनडिनाइबली गाइस एक वन ऑफ द बिगेस्ट मास मास्टर हैं आज के करंट टाइम के, जो स्टेज पर दिखाई देते हैं। उनके साथ में एंड्रू जैक भी हैं जो उनसे कंपेयर करे जा सकते हैं, बट वो अपनी चीज़ों को उस तरह से फिक्स नहीं कर पा रहा है अभी तक। एंड उसके बाद भी गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्नोल्ड क्लासिक में सरप्राइज मत होना अगर आप किसी तरीके से क्रेजी अपसेट होते हुए देख लो, क्योंकि देखो एंड्रू जैक हो सकता है सैमसन डॉडा को बीट कर दें आर्नोल्ड क्लासिक में। इट इज़ टोटली पॉसिबल गाइज, कभी भी पॉसिबल है, जिस तरह से इस बार हमने सैमसन को बीट करते हुए देखा हार्डी चूपन को। और इस बारे में एंड्रू की टीम ने पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन भी दी है। हमने साइको लुइस का वीडियो डिस्कस करा था जहां पर उन्होंने बताया कि क्रिस असीतो और साइको लुइस दोनों आपस में डिफरेंट रूट ले रहे थे और इसीलिए एंड्रू उस बीच में पिस गए। क्रिस उनको लाना चाहते थे बिगर साइड पे, जबकि साइको लुइस उनको उसी तरह से लाना चाहते थे जैसे कि टाइलर मेनियन ने उनको बताया था कि इनको थोड़ा सा और कंडीशन लेके आओ, हार्डर साइड पे लेके आओ, एंड दैट इज इट। बट इन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं करा और कॉस्ट यहाँ पर एंड्रू जैक को पे करनी पड़ी। एंड प्रॉबेबली गाइज इस बार ये लोग इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इन्होंने ऐसा करा ना गाइज और इन्होंने टाइलर की ओपिनियन को फॉलो नहीं करा तो मेरे हिसाब से गाइज फिर से एक बार मैसअप होने के बाद एंड्रू जैक इन दोनों को फायर कर देंगे। यस, ही विल चेंज द कोच। काफी लोग एंड्रू को अभी से सजेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन साथ में गाइज यहाँ पर क्रिस लुइस ने लास्ट वीडियो में बोला भी कि अगर मैं एंड्रू जैक होता तो मैं हम दोनों को फायर कर देता, जो कि मिस्टेक हमने करी है उसके बाद में। और ये टोटली होता हुआ पॉसिबल मैं देखता हूँ गाइज इस बार, बिकॉज कई बार ऐसा हो रहा है कि मिस्टर ओलंपिया के टाइम जब सबसे मेन शो आता है आप वहाँ पर ही थोड़ा सा लैग कर जाते हो, उसके अलावा आप सब जगह अच्छा परफॉर्म करते हो। सो अगर बात करें सैमसंग की गाइस तो अभी तो कोई भी कंपटीशन उनके आसपास नहीं दिख रहा जिस हिसाब से ओपिनियन दी जा रही है, जिस हिसाब से उनको जज करा जा रहा है, जिस हिसाब से सिर्फ एस्थेटिक्स और मास को देखा जा रहा है। क्योंकि ना सोशल मीडिया पर एक चीज और निकल के आ रही है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग गुरुज की ओपिनियन ये है कि भाई जस्ट बिकॉज सैमसंग के पास वो मैसिव साइज है जो कि कोई होल्ड नहीं कर रहा इस टाइम पे, उनको इतना ज्यादा कंडीशन आने की, इतना ज्यादा हार्डर आने की जरूरत नहीं है जितना कि हार्डी वगैरह आते हैं। वेल ये चीज़ गाइस क्लियरली आपको बता दी थी कि बॉडी बिल्डिंग इस वक्त कहाँ पर रुक कर रही है। अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ ट्रू कि मास मास्टर एरा थोड़ा वापस तो आ रही है, लेकिन विदाउट कंडीशनिंग। बट नाउ गाइस लास्ट ईयर जो हमने न्यूज़ और इशू वगैरह सुने थे सैमसंग के साथ में, वो इस बार 10 टाइम्स और इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज थोड़े से हमें हिंट्स तो दिखने लग गए उस चीज़ के ऑलरेडी। और लास्ट टाइम ही वॉज नॉट मिस्टर ओलंपिया, इस बार मिस्टर ओलंपिया है, तो हर एक चीज़ बिल्कुल ना एम्पलीफाई होकर बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो सुना ही होगा कि सैमसन डॉडा की जो वाइफ है माल लेना, उनका सारा क्रेडिट एक तरीके से उनके एक दूसरे कोच लेके जा रहे हैं जो कि सैमसंग को उनकी टीम के साथ में मिलकर ट्रेन कर रहे थे। अब इस बीच में गाइस सैमसंग को अगर वो ट्रेन कर रहे थे तो उनका क्रेडिट लेके जाना मुझे गलत भी नहीं लगता, लेकिन सैमसंग का कहना यहाँ पर ये है कि इनको क्लियरली हमने बता दिया था कि भाई आप सिर्फ इसी एस्पेक्ट में हमें सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, और उसकी पब्लिसिटी भी इनको दी गई। लेकिन ये जितना ज़्यादा इन्होंने करा उससे कहीं ज़्यादा क्रेडिट लेके जा रहे हैं और मेरी वाइफ की तरफ से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ मैंने ही करा है। बट एनीवेज ये चीज़ें तो अब चलती रहेंगी गाइस। बॉडी बिल्डिंग में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और कंट्रोवर्सीज वगैरह ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही हैं। लेकिन इस बार गाइस एवरीवन इज कमिंग आफ्टर हिम। सैमसन डॉडा इस बार टारगेट पे हैं, बिकॉज यही होता है आप जब चैंपियन बन जाते हो, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, हर कोई आपके पीछे लग जाता है। एंड दैट इज़ वाई गाइस सैमसन अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं और अपनी फिजिक को एस्पेक्ट करने के हर एक एस्पेक्ट में ये लग चुके हैं, अपनी विक्ट्री को ग्रांटेड ना लेते हुए। एनीवे इसके बाद अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है शॉन क्लाइडा की। और एक अच्छी न्यूज़ तो ये है शॉन के बारे में भाई कि जैसे कि हमने अभी बाकी सब एथलीट से सुन रहे थे कि ये रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, सब ने अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे या फिर कुछ लोग एक ऑफ टाइम लेने की बात कर रहे थे, वहाँ हमें लगा था कि शॉन क्लाइडा भी ऐसा ही कुछ अनाउंस करेंगे। लेकिन थैंकफुली गाइस वी शुड बी थैंकफुल अबाउट इट कि शॉन क्लाइडा ने एक पोस्ट डाला और उसके अंदर इन्होंने सारी इस ओपिनियन को खारिज करते हुए हमें क्लियरली बताया कि भाई ये एक और राउंड के लिए रेडी हैं। इनके पोस्ट के कैप्शन में ये बोलते हैं, यू ऑल हियर दैट बेल, यस मी नीदर, वन मोर राउंड बैक डे। यानी कि आपने क्या वो बेल सुनी जो रोकने की होती है? नहीं, मैंने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, एक और राउंड के लिए हम तैयार हैं। तो वही है गाइस, शॉन क्लाइडा अभी अपने बूट्स हैंग करने के लिए रेडी नहीं है, ही इज ट्राइंग टू फाइट वन मोर टाइम। और मुझे लगता है गाइस अब मैट जेंसन के साथ तो ये ट्रेन करेंगे नहीं, बिकॉज मैट जेंसन ने अपना कैंप एक तरह से पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। सो लेट्स सी किस कोच के पास जाते हैं। बट सबसे अच्छी बात तो ये है कि शॉन हमें compete करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, मुझे एक्चुअल में ये लगता है कि जैसे क्रिस और बियॉन के बीच में डिस्टेंस सेकंड ईयर से बढ़ना स्टार्ट हो गया था ना, वही चीज़ हमें अब होती हुई दिखाई देगी। शॉन इज़ एन एक्सेप्शनल बॉडी बिल्डर गाइस। मिनी रॉनी कॉलमैन का टाइटल इनको मिल चुका है और बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की फिजिक ये लेकर आते हैं, हार्ट फुल मसल विद इंसेन लेवल ऑफ मसल मैच्योरिटी। लेकिन वही है कि ऑन अब बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, अब ये डिस्टेंस मुझे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अब अगर इस साल ये इनको पकड़ नहीं पाए ना, तो मुझे नहीं लगता आने वाले किसी भी साल में पकड़ पाएंगे। प्लस देखो एक शॉन क्लाइडा ने अपडेट भी डाली है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं अपनी फिजिक को, जो कि मिस्टर ओलंपिया से 10 दिन पहले की। यस गाइस 10 डेज आउट अपडेट थी ये, और यहाँ पर देखो इनके मसल्स कितने इंसेन लेवल पे लग रहे हैं, मतलब आप कोई कमी नहीं निकाल सकते।
और अगर ये अपडेट ये मिस्टर ओलंपिया से पहले शेयर कर देते ना तो हम लोगों की ओपिनियन भी यही होती कि भाई शॉन इज गोइंग टू बी अनबीटेबल, शॉन इनको बीट नहीं कर सकते। बिकॉज देखो मसल का लेवल देखो, लेग्स भी यहाँ पे बिगर साइड पे लग रहे हैं और जो डेंस वैस्कुलरिटी वाले मसल्स दिख रहे हैं ना वो अलग ही है मैन। लेट्स वगैरह देखो इस पोस्ट के अंदर कितने इंसेनली निकल के आ रहे हैं। हार्डनेस फिजिक में अलग लेवल की कैरी कर रहे हैं, मसल मैच्योरिटी तो भाई इंसेन लेवल की है। क्यों अभी भी इनको मैच नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। वही है गाइस, इस फिजिक अपडेट को अगर हम पहले कवर करते तो शायद हम भी यही बोलते और ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर यही बोलता कि भाई शॉन क्लाइडा एक बहुत ही टफ बैटल देने वाले हैं यहाँ पर क्योन पियर्सन को। लेकिन वही बात है गाइस, अकेले सेपरेटली खड़े हुए आप ऐसे ही दिखते हो, लेकिन आप स्टेज पर जब दूसरे के साथ कंपेयर करे जाते हो ना वहाँ डिफरेंस पता लगता है। और वहाँ पर क्योन पियर्सन ने टोटली इनको मौका ही नहीं दिया, कहीं पर भी इनको चांस नहीं मिला, कोई भी इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली खुद को प्रूव करने की। बिकॉज क्योन पियर्सन वॉज सो डैम डोमिनेंट। और यही है गाइस, मुझे इसीलिए लगता है कि शॉन क्लाइडा अब कितना भी इंप्रूव करते जाएं, क्योन पियर्सन की इंप्रूवमेंट्स की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। और इसी हिसाब से गाइस, जिस हिसाब से उन्होंने गैप बना दिया ना, अब गैप को इंक्रीज करते ही जाएंगे। तो मुझे ये लगता है क्योन पियर्सन को आने वाले टाइम में भी अगर 212 में ही वो compete करते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक कोई उस तरह से चैलेंज कर पाएगा। बीट करना तो एक दूसरी बात है, चैलेंज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एनीवेज आप बताओ शॉन की फिजिक इस अपडेट के अंदर आपको क्या लग रही है, कैसी लग रही है, और साथ में क्या आपको शॉन का ये डिसीजन समझ में आ रहा है जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई मैं compete करूंगा, मैं अभी रिटायरमेंट वगैरह नहीं ले रहा, आई एम रेडी फॉर वन मोर राउंड। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो वो है अबाउट होजे मैनुअल। एंड अपने डेब्यू ईयर में ही गाइस, डेब्यू ईयर में ही होजे ने क्लासिक जैसे कंपेटिटिव डिवीजन में टॉप 6 में एंट्री कर ली। यस, और अपनी दोनों प्रो शोज विक्ट्री से ही इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट कर दी थी अपने ईयर राउंड। एंड यहाँ पर गाइस मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमने पूरे साल विदाउट एनी गैप होजे मैनुअल को कवर करा है। इस चैनल पर यही होगा गाइस, हम हर एक एथलीट को कवर करने का पूरे साल ट्राई करते हैं और करते भी हैं, जो चाहे टॉप टैलेंट नहीं हो बट हमें उसके अंदर कैलिबर दिख रहा हो टू बी द टॉप टैलेंट। एनीवेज देखो जैसे इनकी वेस्ट है दैट इज ऑन अ वेरी थिकर साइड, और ये चीज क्लासिक में काफी कॉस्ट भी करती हुई हमने देखी है। बट व्हाट्स क्रेजी वाज हिज पोजिंग गाइस। यस, इंसेनली स्मार्टली ही वॉज पोजिंग गाइस, इस तरह से कि वेस्ट को जितना हो सके छुपा सकें, स्मॉलर साइड पर प्रेजेंट कर पाएं। और ये आपकी स्मार्टनेस के बारे में, आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ बताता है गाइस। अपने फ्लॉस को किस तरह से छुपाना है और अपनी स्ट्रेंथ पर किस तरह से खेलना है। इन द रीसेंट टाइम्स इसका होजे मैनुअल से बढ़िया एग्जाम्पल हमने किसी और को देते हुए नहीं देखा। मतलब ये कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे थे कि किसी का ध्यान इनकी वेस्ट की तरफ जा ही नहीं। अ ट्रेमेंडस पोजर ही इज गाइस। एंड अब देखो आने वाले टाइम में विथ मोर मसल मास इन द आर्म्स ही कैन डेफिनेटली प्लेस इवन हायर गाइस एंड बी अ थ्रेट टू एवरीवन इन द टॉप 5 टॉप 6। बाकी आप बताओ आपको होजे मैनुअल की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। आई रियली होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।